हरि ओम हरि श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। अमर अवतार भगवान श्री कदली काल भैरवनाथ भगवान की जय। આપણા પૂજા પદ્ધતિમાં યજ્ઞોમાં ભગવાન ભૈરવનાથજીનો 64 ભૈરવ તો 64 ભૈરવ ભગવાન की जय। આજે ભગવાન ભુવન ભાસ્કર શ્રી સૂર્યનારાયણ ભગવાનનો રવિવાર છે। ભગવાન ભૈરવ દાદાના આજ પૂજાનો વાર છે। દરેક રીતે ભૈરવ દાદાને પ્રસન્ન કરવાનો વાર છે। જે કોઈ ભાઈ બહેન ગરીબ હોય, તબંગર હોય, નાના હોય, મોટા હોય, તુલસીનાથ બાબા વિનંતી કરે છે કે ભગવાન ભુવન ભાસ્કર સૂર્યનારાયણને જલ ચઢાવવાનું બહુ જરૂરી છે। જે પુરુષોત્તમ માસનો મહિના ચાલે છે એ પુરુષોત્તમ માસની જે મહિમા છે એને ભગવાન બ્રહ્માજી પણ વર્ણન નથી કરી શકતા। એટલા મોટો મહિમા છે પુરુષોત્તમ માસનો। અને આમાં ભગવાનની કૃપાથી અમે પૂજા કરશું, પાઠ કરશું, સ્નાન કરશું, દાન કરશું। અશ્વમેઘ યજ્ઞ જેવા આપણે ફલ પ્રાપ્ત થશે। આ દિવસે આપ સૌને નમ્ર વિનંતી છે કે ઘરમાં તુલસી માતામાં 2 ટાઈમ દીવા કરજો, અવશ્ય જરૂરી છે। પ્રાતઃકાલ, સંધ્યાકાલ। ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप पवित्र पावन पुरुषोत्तम मास, ज्येष्ठ मास, अधिक मासना परमात्मा विष्णुजीनो भगवान पुरुषोत्तमना બહુ ફલદાયી મંત્ર છે। આ માસમાં આ મંત્રનો જાપ કરવાથી બહુ ફલીભૂત થાય। તુલસીની માલા હોવી જોઈએ, ધ્યાન રાખજો प्यारे भाइयों। हे भक्तों, भगवान हरिप्रिया तुलसी જ્યારે આપણે ભગવાનને ભોગ ધરીએ રવિવારે, એકાદશી, પૂર્ણિમા ઇત્યાદિ ઇત્યાદિમાં તુલસી પાંદડા ના તોડાય। તુલસી માતાના જે નીચે ખરી ગયેલા પાંદડા હોય એને ધોઈને અર્પણ કરી શકાય, અથવા 1 દિવસ પહેલા ચઢાવેલા હોય એ તુલસી માતાના ધોઈને અર્પણ કરી શકાય।
હનુમાનજીને પણ ભોગમાં તુલસી બહુ પ્રિય છે. એક ગણપતિ દાદા સિવાય પ્રથમ પૂજ્ય રિદ્ધિ સિદ્ધિના દાતા ને તુલસી ચઢાવવાની મનાઈ છે. બસ તો મારું નિવેદન તમે સૌ ભૂલતા નહીં. પીપલે પાણી ચઢાવવાનું. પીપલે પાણી ચઢાવવાથી એક તો ભગવાન વિષ્ણુ, ભગવાન બ્રહ્માજી, ભગવાન શિવજી અને સાથે ભગવાન વિષ્ણુજીના કૃપા પાત્ર અર્થાત પરમ ભક્ત શનિદેવ મહારાજ, ભગવાન વિષ્ણુ શનિ મહારાજના ઈષ્ટદેવ છે. તો પીપલે જલ ચઢાવવા એટલે દેવ પ્રસન્ન થાય. તે સિવાય પીપલે જલ અર્પણ કરવાથી પિતૃ દેવતાઓ બહુ પ્રસન્ન થાય છે. તો લાભ જ છે, ખૂબ લાભો લાભ. જયા જયા. પુરુષોત્તમ ભગવાન માસની કથા સાંભળવું જોઈએ, વાર્તા સાંભળવું જોઈએ, સાંજે કીર્તન કરવું જોઈએ, જાગરણ કરવું જોઈએ. પુરુષોત્તમ માસમાં ભગવત જપ ખૂબ કરવું જોઈએ, ખૂબ કરવું જોઈએ, ખૂબ. આ સો મેઘ યજ્ઞનું ફળ આપે છે. સજ્જનો આપણો વિષય ચાલતો હોય તો ગોરખ બાણી. ગોરખ બાણી દેવાદિદેવ મહાદેવ વાસુ તો સૌગણતાને સદાશિવ મહેશ્વરા ઈશ્વરા પરમેશ્વરા જગદીશ્વરા એનો જ અવતાર છે ગોરખનાથજી ભગવાનના. જ્યારે યોગ જે વિદ્યા છે, યોગ વિદ્યા રસાતલમાં જઈ રહ્યા હતા, અર્થાત યોગનું નામો નિશાન થવાની તૈયારી હતી, ત્યારે એક અલગ અવતાર ધારણ કર્યો ભગવાન સદાશિવ ગોરક્ષનાથ ભગવાનના અવતાર. અલગ દુનિયા, અલગ ગુફા, અલગ સૃષ્ટિ, અલગ ચમત્કાર, बाल स्वरूप श्री बाले गोरक्ष के चरण प्रणमामि हम. जय हो श्री नाथ जी के चरण प्रणमामि हम. जय हो श्री गुरु जी के चरण प्रणमामि हम. जय हो श्री जति गोरक्ष के चरण प्रणमामि. तो भगवान गोरखनाथ जी सदा सर्वदा बाल्य अवस्थाમાં જટાજૂટ, મસ્તક ઉપર ચંદ્રમા, હાથમાં ત્રિશૂળ, બીજા હાથમાં ખપ્પર, અલખ નિરંજન, અલખ નિરંજન, અલખ નિરંજન,
भव दुख भंजन अलख निरंजन भव दुख भंजन। पूरा नाम છે ભગવાન ગોરખનાથજીનું શિવ ગોરક્ષ। मेरे प्यारे भाइयों श्रोतागणों, शिव गोरक्ष शुभ नाम को हो शिव गोरक्ष शुभ नाम को रटते शेष महेश। माँ सरस्वती बंदन करे पूजन करे गणेश। तो भगवान गोरखनाथ जी ना શ્રીનાથજીના મુખાર બિંદુ નીકળી વાણી અને અમૃતમય પ્રસાદી આપને પીરસું છું। સુનો હો सुनो हो नरदे सुधी विधि विचार। भगवान जति गोरक्षनाथ जी कहते हैं सम्राटो, तुम्हें सम्राट कहते हैं। याद रखना, क्योंकि हो तो तुम सम्राट मान लिया जाए तो सम्राट मान लिया जाए तुमने की भीख मांगे हो, तुमने की भीख मांगे हो तो तू मालिक क्यों सम्राट बना। मान लिया कि गुलाम हो, मान लिया तो हो गए। गोरखनाथ जी कहते हैं सम्राटो सुनो रे, सुनो हो नरवे। ए सम्राटो सुनो, शुद्धि विधि का विचार, शुद्धि विधि का विचार। थोड़ी समझ की, थोड़ी बोध की बात भी सुन लो कि दौड़ते ही रहोगे क्या, भागते रहोगे ही क्या, रुकोगे नहीं। रुक कर थोड़ा विचार ना करोगे कि तुम दौड़ लिए कहाँ पहुँचे। एक दफा पुनः विचार करो, निरीक्षण करो
पंच तत्व को उत्पन्न सकल संसार, पंच तत्व ले उत्पन्न सकल संसार, ये तुम जिन चीजों के पीछे दौड़ रहे हो प्यारे, वहां भी कुछ नहीं है। पंच तत्वों का खेल है। मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इनसे यह सारा खेल निर्मित हुआ है। इस खेल में भी कुछ नहीं है, और जिसकी तुम तलाश कर रहे हो वह तुम्हारे भीतर मौजूद है। इन पांच तत्वों के जो पार है, जो इन पांच तत्वों के पार है, जिसकी तुम तलाश कर रहे हो, वह तो तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। इन पांच तत्वों के जो पार है, ये तो लहरें हैं। इनके साथ तुम कभी आनंदित ना होगे, आनंदित ना हो सकोगे तुम, क्योंकि वे बन भी नहीं पाती, कि मिट जाती है। इसके साथ तुम कैसे पाओगे? ये क्षणभंगुर है, और जो क्षणभंगुर है उससे सुख मिलता है। जरा उसे खोजो जो शाश्वत है, जो नित्य है, जो निरंतर है, उसको खोजो प्यारे भाइयों, सज्जनों, भक्तों। और वही तुम्हारे भीतर बैठा है, वही तुम्हारे अंदर बैठा है। इस संसार को अगर देखो गौर से, ध्यान से, तो तुम्हें देखने वाले का स्मरण आने लगे। और फिर अगर इसे मूर्छा से देखो तो देखने वाला तो भूल ही जाता है, उलझ गए दृश्य में। तो जो उलझा दृश्य में तो भटक जाता है, और जो दृष्टा में जग गया वो पहुंच जाता है, पहुंच गया। पहले आरंभ घट पर्चा करो। सुने मेरे श्रोतागण भाइयों, गोरखनाथ जी क्या कह रहे हैं। पहले आरंभ घट पर्चा करो, निष्पत्ति नरवे बोध कबंध श्री गोरख जति। तो जति गोरखनाथ जी कहते हैं
सम्राटों, तुमसे 4 बातें कहनी है, कहता हूँ। जति गोरखनाथ जी अपनी पूरी जीवन जितना को इन 4 बातों में तो ढाल देते हैं। पहले आरंभ घट परिचा करो निष्पत्ति। चार बातें। पहला है आरंभ। आरंभ का अर्थ है अभी। तुम बाहर की ओर दौड़ते रहो। तुमने अंतर यात्रा का आरंभ भी नहीं किया। तुमने आंखें पीछे नहीं फेरी। तुमने अपने नेत्र को आगे पीछे नहीं फेरा। तुमने लौट कर नहीं देखा। अब महावीर भगवान उसी को कहते हैं प्रतिकर्मण कहा है। महावीर भगवान ने प्रतिकर्मण चित्त की 2 दशाएं हैं। चित्त की 2 दशाएं हैं। आकर्मण यानी बाहर की तरफ, प्रतिकर्मण यानी भीतर की तरफ। आक्रमण यानी दूसरे पर, प्रतिकर्मण यानी अपने पर, या जिसको पतंजलि ने प्रत्याहार कहा है। सज्जनों, जिसको भगवान पतंजलि ने प्रत्याहार कहा है। यम नियम ध्यान धारणा प्रत्याहार। लौट आओ, अपने घर लौट आओ। और इसी को जीसस ने कन्वर्सन कहा है। कन्वर्सन का अर्थ नहीं होता कि कोई हिंदू ईसाई हो जाए। ध्यान से सुनो लोग, जो धर्म परिवर्तन करते हैं उनके लिए है। कोई हिंदू ईसाई हो जाए कि कोई ईसाई हिंदू हो जाए, या कोई कन्वर्सन है। कन्वर्सन का अर्थ होता है अहित्र यात्रा। अर्थात अंतर यात्रा हो जाए। तुम मंदिर बाहर ना खोजो, भीतर खोजो। तुम बाहर के तीर्थों पर मत जाओ, तुम भीतर स्नान करो। यहीं में काशी, यहीं में मथुरा, यहीं में अयोध्या, यहीं में गढ़ किनारा साधु, हर बिन जग अंधियारा। तो अपने अंतर खोजो, बाहर नहीं।
बाहर मत खोजो, अपने भीतर खोजो। तुम बाहर के तीर्थ पर मत जाओ, अपने भीतर ही स्नान करो। तुम ध्यान में डुबकी लो। जो जीवन में क्रांति शुरू होती है प्यारे भाइयों, उसी क्रांति को भगवान जति गोरक्षनाथ जी ने क्या कहा? आरंभ, तभी तुम्हारा मनुष्य होना प्रारंभ होगा। माता जी, तुम्हारा मनुष्य होना प्रारंभ होगा। ध्यान से सुने मेरे भाई श्रोता करो। भगवान गोरखनाथ जी की सब अटपटी वाणी तो है। वर्षा कंबल भीजे पानी, कबीरदास जी कहते बोलो कल रखे सब। पर इसका इतना गूढ़ अर्थ है आध्यात्मिक, जानकर आपको आश्चर्य होगा। जीवन में क्रांति शुरू होती है, उसे क्रांति को जति गोरक्षनाथ जी कहते हैं। मनुष्य होना शुरू हुआ, इसलिए कहते हैं आरंभ। आरंभ। पशु भी बाहर जीते हैं, पशु भी बाहर जीते, पौधे भी बाहर जीते हैं। सिर्फ एक मनुष्य है इस पृथ्वी पर जो भीतर भी जी सकता है, उसकी ही यह संभावना है। जो आत्म साक्षात्कार कर सकता है। बाहर तो सभी दौड़ते हैं, इसमें कुछ खूबी नहीं है। तुम्हारे जीवन में महीना प्रारंभ करो। महीना प्रारंभ होती है उस दिन जिन तुम भीतर लौटना शुरू होते हो। गौरवान्वित, महिमान्वित, आनंदित, प्रफुल्लित, जीवन साफल्य की ओर तुम्हारे भीतर जन्म हुआ आत्मा का। देखिए श्रीनाथ जी कैसे लगा रहे आप सबको। तुम्हारे भीतर जन्म हुआ आत्मा का, तुम्हारे भीतर की तलाश शुरू हुई और वही बड़ी से बड़ी क्रांति है, वही बड़ी से बड़ी जीवन की क्रांति है। और कोई इतनी बड़ी क्रांति नहीं है, अंतर क्रांति है। इसी को भगवान गोरखनाथ जी कहते हैं आरंभ, अर्थात श्री गणेश। अब कल हम गोरखनाथ जी जो रहस्यमय बात है, 4 बात, उनके जीवन की 4 बात है, वो पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा, तीसरा, चौथा कल सुनेंगे। तो बोले श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो,
श्री गोरक्षनाथ भगवान की जय हो। सूर्य नारायण भगवान की जय हो। श्री भैरवनाथ जी प्रभु की जय हो। वेद माता गायत्री की जय हो। आओ जो प्यारे भाइयों,